Good morning, student. Good morning, sir. Okay, welcome back, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West. Your FIVSAT second self subject is web designing and web programming, presented by Bipin P. Vaity. So already I share you syllables related that, and now today, yesterday I send you PDF file related chapter 1. Yes or no? Have you got this? आपने देखा है वो file? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So related that. Okay, I share you this screen, and related theory part we have to do it with this, and practical I already share the practical. You start to write in the journal. Okay. Yes, student. Hello. Sir, in that only journal we have to continue writing. No, new journal, new subject. Is a semester over? Your journal is over. Now you have to new subject, new journal is there. Okay. Okay, You sir. can use for rough pages for this for journal. We don't mind. Okay, but now this journal you have to continue with the new, and then now this is suppose now this time is also online exam is there. That time you have to upload the journal. That is the same procedure we have to do it. Okay, is it clear? Yes, Okay. sir. Okay, fine. So, yeah, I share you the screen, your book, textbook. Okay, see that now textbook, web designing and programming, FIBSA, semester second, that you have to refer. Set publication books you can refer. You have the first unit is the related, what is internet, introduction to internet and its application, email, telenet, FTP, e-commerce, related internet, all facilities, applications, what we can do with the internet and www. Then after that, they are giving the search engine all that. Then second unit, so then they are start with the HTML and graphics. We have done already start with the HTML, but some of the theory part it is left. So we don't have to bore all that things. That's why first of all we have to do with the internet, and then after that we will continue with your practical session also of HTML. We have already started, right? So what is internet? So already I tell about that internet is the worldwide web. We want to collect the global information. So we have to use the media, that is internet. So internet is the network of network. So computer network is referred to as a network is a collection of hardware component, computer interconnected by communication channels that allow the share of resources and information. So internet is a now definition is given. Internet is a global system of interconnected computer network. All networks come together and interconnected with the system, and that use the standard internet protocol TCP/IP. What is TCP/IP? Transmission Control Protocol and Internet Protocol. That is, we are transferring the data from one location to another location, one device to another device. That time we require the transmission device. That's why each and every device, when you connect it through Wi-Fi, wireless or wired, that is your LAN card, through they are using the TCP/IP protocol. So TCP is the transmission control protocol, and IP is the internet protocol. What it is? Internet protocol. What do you mean that internet protocol? They simply we are sending the data through website, suppose server through server, attachment file or whatever. So we require the IP address to track all that thing, because we are writing like that domain name www.google.com. But Google, it is not understand by the computer. Computer knows the only zeros and ones. So how we can understand the Google? We are written. So it www.google.com. They use the protocol. They convert into IP address. That is your some of the IP addresses like that 4 digits 127.0.0.1. So that time it convert into that IT, and then they run. So you think about that there is only one computer as a Google? No, it's not like that. There are many IP address who support to show the information interconnected to your network, and that's why they are saying IP. IP means Internet Protocol Address. Who store the data or who serve the data? So that is IP.
So IP is your computer is also indicated with the one IP when you are connected to the internet. So that is TCP IP. Got it? So it is a network of network that consists of millions of private and public network. There are private network. Now we are using private computer in the lab. That is private. But when we are using public means what government sites are there or many sites are there. Publicly they are collecting the information. There are private, public, academic, business, government. These are different type of domain, geographical non-geographical domain, government, military, organizations, commercial. Okay, so that's why there are .com, .gov, .org, and then .mil. Okay, these are this is the all domain code it is there given. Okay, so that are linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technology. So internet carries a vast range of information resources and services such as like interlink, hypertext document of worldwide. Of course, when we are using now at present we are using mobile to search the data. So it is wireless through internet. So we are purchasing the data, mobile data, that is called the internet data. So that we are collecting the data through on rental basis monthly we are paying. So that's why we are collecting that data through tower and through satellite, and then we are getting that information electronic, wireless, and optical network technologies. So it carries the many resources, services with interlinked hyperlink document. We are linking to the other pages, one document to another document. We are filling the form. That time we are just jumping on the from one information to another information, one page to another web page. These are all included with the www, that is World Wide Web. So we are developers, so we have to see that okay, how to develop the web pages, how to design the web page, and how to send the information to the people as a globally. That's why we have to learn the HTML. Internet back research in 1960, but now in United States. But after 1991, Tim Berners-Lee, who give the all www concepts and protocols, and they developed the HTTP protocol, and then it is developed by the internet. This is the history. Okay, internet कैसे develop हुआ, क्या हुआ. So this is the introduction part they are given. फिर now application, you know, I mean ज़्यादा time आपका लूंगा नहीं. Application of internet everybody knows. Email, electronic mail. We can send a message from one device to another device easily within a second, just like postcard. But postcard को तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आदमी चाहिए. But यहाँ पे भी within 1 second through server we can send the data. Now email कैसे होता है? तो each and every now website sign up the account, and then we have to create the new account. Sign up means we have to create a new account and create your own email ID or through Google ID. Google is a now common ID because it is workstation. It is a server of servers. Okay, network of networks. That's why they are using Google ID for each and every email identification. बहुत ज़्यादा email ID बनाते हैं तो Google is common बनाए uniquely. This given. So it is electronic mail. Through this email ID we can send a data. It is unique. Unique matlab identification of that who are going to send the data. So when we are sign up the document, that time when we are creating the document, that time we are filling all the information over there. Just like that we are filling your name, address, date of birth, everything. If it is true or not true, that is not mine, but they track the IP. Okay, and you are now they are tracking with the security system. They're tracking with your mobile, they're tracking with the OTP, they're tracking with the security answers. So it is represent that like that if your mobile is registered, if your security is registered, then only they allow you the. Now security is more. Now you can get it कि आपको हमेशा अगर मैंने दूसरे पीसी में वो ईमेल ओपन किया तो they give you address of security, right? तो ये सारी चीजें ईमेल में होती है. तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल तो आपको कैसे ईमेल भेजना है वो ऐसे भेज रहा है टू सब्जेक्ट सीसी एंड ऑल दैट ऑन ईमेल राइटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वो बताया. तो दिस इज द फैसिलिटी ऑफ द इंटरनेट एप्लीकेशन. पहला एप्लीकेशन फैसिलिटी इंटरनेट का पहला एप्लीकेशन फैसिलिटी है वी कैन सेंड द ईमेल, we can send a message from one device to another device. Next facility is the e-commerce. Now at present internet is not only used to show the global information, it is used for
doing the business transaction also. That's why there is a e-commerce. What is e-commerce? Electronic commerce. Whatever we are doing the traditional commerce, traditional business, same like that we have to do through the electronically. We can do the transaction, we can transfer the info, we can do the all buying and selling of the goods and services through the internet. That is one. Just like Amazon.com. There's a no shops available. There's a only institutes are available like that. Our institute, we cannot say institute, one of the company who going through the internet. Okay, they are buying or selling of the goods through the internet. They are providing the services, they're providing the goods. These are all the through the electronic. That's why that is called e-commerce, electronic commerce website, e-commerce website. Got it? So this is paperless work, exchange of the information by within. आपको उधर फिजिकली आप उधर जा ही नहीं सकते, आप खाली इलेक्ट्रॉनिकली जा रहे हो. दैट्स व्हाई दे आर पेपरलेस वर्क and it is transferring through the EDI, that is electronic data interchange. They are transferring through your delivery address, your receiving address. ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर करके आपके पास वो प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंच जाती है, उसको ई कॉमर्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. कभी कभी B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफर होता है. कभी कभी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कभी कभी कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, कभी कभी C2B होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है. व्हाट इज दैट? ऑल दैट थिंग्स आर डिफरेंट थिंग. B2B मतलब ओनली मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर सेलिंग टू रिटेलर, लाइक दैट. मतलब हम लोग के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आता है. वी आर मेकिंग वन फ्रेंचाइजी, एक दुकान निकाल देते हैं, वहां पे प्रोडक्ट आ जाते हैं, वहां से हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उसको बोलते हैं B2B. वैसा होता है B2C से भी होता है. B2C डायरेक्ट है. Amazon.com इज डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर. देन कंज्यूमर टू बिजनेस उल्टा भी हो सकता है. कंज्यूमर टू बिजनेस, बट कंज्यूमर पोस्ट हिज प्रोजेक्ट विद द सेट बजट ऑनलाइन एंड विद इन हॉर्स कंपनीज रिव्यू द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, बिड ऑन द प्रोजेक्ट. कभी कभी प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर टू बिजनेस दे रहा हूँ. तो ओके, कंज्यूमर से लाइक दैट. फिर वैसे भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है. ईबे, वी आर सेलिंग द गुड्स. आजकल ऑनलाइन ऑप्शंस जो चालू है सेकेंड हैंड थिंग्स का, प्रोडक्ट का, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर. So these are all the types of नई एडवांटेजेस बताए हुए. एडवांटेज एक ही है, मैं 24/7/365 डेज वर्क कर सकता हूँ. यानी कि आपका वेबसाइट कभी क्लोज नहीं होगा. सर्वर आपने बनाया हुआ है, लॉन्च किया है, इसके लिए डोमेन परचेज करना पड़ता है, सर्वर में IP एड्रेस लेना पड़ता है. एक बार आपने लिया तो उसके ऊपर साइट लॉन्च करो तो वो आप 24/7/365 डेज वर्किंग रहेगा. देयर इज अ एडवांटेजेस इज देयर गिवन. देन आफ्टर दैट ग्लोबल मार्केट है. आप लोगों को कोई कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं, कस्टमर आपको ढूंढेगा. स्पीडली वी कैन ट्रांसफर द डेटा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अलाउ मैसेज, इंटरेक्टिंग पार्ट हम लोग कर सकते हैं. ये सारी चीजें ई कॉमर्स. थर्ड एप्लीकेशन है आपका ई बिजनेस. आवर बिजनेस is limited in the particular area or city wise or district wise, limited होता है. लेकिन अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना है तो वी लॉन्च द वेबसाइट. तो उससे ई बिजनेस आता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो जाता है. वो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कुछ अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है, मुझे पूरा प्रोडक्ट पूरे बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना है, तो वी मेक द फ्रेंचाइजी. तो फ्रेंचाइजी हम लोग सब जगह पे बनाते बैठेंगे तो वो इट इज कॉस्टली. बट अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बनाते हैं, बिजनेस रेडी करते हैं, तो ई बिजनेस की तरह हम लोग वो काम इजीली कर सकते हैं. फोर्थ, इंफॉर्मेशन. वी आर कलेक्टिंग द ग्लोबल इंफॉर्मेशन. गूगल है, आप जो भी सर्च करना चाहते हो गूगल पे मिलता है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग सिस्टम इज द. सर्विसेज मिलते हैं. कोई हमारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, ऑनलाइन मुझे देखना होता है उस पार्ट्स के और सर्विसेज के बारे में, तो ऑनलाइन सर्विसेज मिलते हैं. मैंने टीवी खरीदी किया, उसकी टीवी की रिपेयरिंग की सर्विसेज मिलता है. देन ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है. वी आर डूइंग ईमेल्स, चैटिंग एप्लीकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. दिस आर ऑल द थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू ऑनलाइन. आपको पता है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो मैसेज दे सकते हो, चैटिंग कर सकते हो. दिस इज ऑल कम्युनिकेशन. आज व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, वो एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन का पूरा इंटरनेट का एप्लीकेशन है. ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स फोरम सुने होंगे आप लोगों ने, ट्विटर एंड ऑल दैट की न्यूज, छोटे छोटे न्यूज आपको हाईलाइट करने. आज इधर कुछ हो गया, गांव में कुछ बारिश आ गई, गांव में कुछ भूकंप आ गया, so we can use a blog. Blog is a type of website, is a part of website supposed to be updated with the new content from time to time.
न्यूली कंटेंट जो भी अपडेटेड होते हैं वो एक एक ट्वीटिंग करके आप लोग ब्लॉक करते हो और ब्लॉक सेंड करते हो, तो न्यूज की तरह हम लोग रीड कर सकते हैं। ओके, वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला कि आपको 4 अलग अलग सिटी में आपके मैनेजर्स हैं और वहां पे आपको रीड करना है, आपको डेटा रीड करना है और आपको उसके साथ साथ कम्युनिकेट करना है। तो आप 4 अलग मैनेजर से एक जगह पे बैठ के मतलब वो वहां पे कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, फिर भी आप एक जगह पे सर्वर पे आप एक साथ मिल सकते हो, उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दैट वी कैन डू इट। वीडियो इनपुट, वीडियो आउटपुट, वो सारी चीजें होती है। अभी मैं जूम में मीटिंग ले रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पार्ट, इट इज देयर। आफ्टर दैट www, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैं रीड करना चाहूंगा। वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस वाया इंटरनेट। जो भी आप इंटरनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट सेंड करते हो वो इंटरलिंक करने का काम www कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। So with a web browser, one can view web page and that may contain text, images, video, other multimedia, navigation between them via hyperlink. जो भी आप वेब पेजेस में क्रिएट करते हो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है या इमेज होते हैं, वो वीडियो, आजकल ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया, गेम्स, नेविगेशन पार्ट, इट इज देयर, ऑल दैट थ्रू द हाइपरलिंक्स दैट मैनेज बाय द www. So www, World Wide Web, had a number of difference from other hypertext system and that were then available. So web required only unidirectional links rather than bidirectional ones. ओके, क्या बोला है? यूनिडायरेक्शन, नॉट इवन यूनिडायरेक्शन, एक वन वे कम्युनिकेट होता है, दो रादर देन दो वे से ज्यादा वन वे कम्युनिकेट ज्यादा होता है। दो वे कम्युनिकेट करना होगा तो जैसे ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो दो वे होता है, बाय डायरेक्शन, लेकिन वो ज्यादा अच्छी तरह से फटाफट नहीं होगा। लेकिन जितना वन वे यूनिडायरेक्शन में होता है उतना फास्टर कोई भी नहीं है www. So this made it possible for someone to link to another resource without action by the owner of that resources. Is it clear? यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes, student. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So it is also significantly reduced the difficulty of implementing web server and browser. इसलिए उससे हमारी जो वेब सर्वर्स की डिफिकल्टीज थी वो निकाल दी है, ब्राउजर की डिफिकल्टी निकाल दिया है, बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग टू द लिंकिंग ऑफ द रिसोर्सेज। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। एक्चुअली इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर network. So in contrast, web is one of the service that run on the internet. It is a collection of the textual document and other resources linked by the hyperlink. Of course, आपको टेक्सचुअल कलेक्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक करके कैटेगरी वाइज आप दूसरे इंफॉर्मेशन में जंप करते हो, वो हाइपरलिंक टेक्स्ट होता है। In short, the web can be thought of as an application running on the internet. यानी कि वेब ऐसा है कि जो एप्लीकेशन रन हो रही है वहाँ, नथिंग अदर, एप्लीकेशन रन हो, कोई एप्लीकेशन रन करना है। जैसे हम लोग देखो वहाँ कुछ अटैच होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, क्लिक करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाता है। इसका मतलब उसका भी, गूगल का भी खुद का क्या है, गूगल पे करते हो, जीमेल में करते हो, जिसमें करते हो उसका खुद का क्या है, डॉक्यूमेंट हो गया, तो इट विल ओपन और देन जो सिस्टम में आपके इंस्टॉल है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। लेकिन नहीं हुआ तो भी प्लगइन्स के थ्रू वो आपके एप्लीकेशन में चालू करेगा। तो दिस इज व्यूइंग अ web page on the world wide normally begins either by typing the URL of the page into browser, यहाँ पे ऊपर आप एड्रेस लिखते हो, या otherwise following the hyperlink to that page or resources. The web browser that initiates a series of communications behind the scene. तो world wide web आपको बताया हुआ है, it is a collection of the global information and link to that page and view as a view on the browser. फिर URL एड्रेस, URL क्या होता है? एड्रेस होता है, बराबर ना? URL was developed by टीम बर्नर्स-ली। एक्चुअल में मैंने बताया था आपको HTTP प्रोटोकॉल किसने डेवलप किया है? टीम बर्नर्स-ली ने। पहले इंफॉर्मेशन ऐसे ही एक साइट पे इंफॉर्मेशन ग्लोबली आती, जैसे PDF फाइल आती है वैसे दिखाती, बट उसको एक उन्होंने प्रोटोकॉल रूल्स बनाए। HTTP प्रोटोकॉल इट ओपन्स द वेबसाइट, so there we require the address, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन है तो फोल्डर वाइज एड्रेस होता है। URL was developed by Tim Berners-Lee in 1994 and the Internet Engineer Task Force
URL वर्किंग ग्रुप, so it is the global address of the document. उससे क्या होगा? ग्लोबल एड्रेस, यूनिक एड्रेस। आपको पता है आपके पीसी में अगर आपका डेटा है और आपको बोला मुझे डेटा कलेक्ट करना है, कॉपी करना है, तो आप क्या करते हो? उस लोकेशन में जाते हो। वैसा ही यहाँ पे है, आपको अगर वेब पेज में एक आध इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो उस इंफॉर्मेशन, तो आपका एड्रेस बार देखो हमेशा चेंज होते रहता है। ऊपर जो एड्रेस बार होता है ना, वो हमेशा चेंज होता है एंड इट इज इन इनक्रिप्टेड मॉडल में होता है। देखा ना आपने? इनक्रिप्टेड मॉडल में, इनक्रिप्टेड मतलब क्या? इट कैन नॉट कॉपी एंड इजीली एक्सेस, राइट ना? जैसे आपका लिंक होता है, यूट्यूब का लिंक हो गया, एड्रेस देखा आपने कैसे चेंजेबल हो जाता है? एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होता है क्योंकि वो इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड आपको पता होगा कि जो टेक्स्ट आप रीडेबल नहीं होती है, मतलब इट कन्वर्ट द नॉर्मल टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट, उसको इंक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं। ओके, तो इंक्रिप्टेड जैसे पासवर्ड आपका रीड नहीं करना है तो आपको वो बुलेटेड और स्टार में दिखाता है ताकि कोई रीड ना करे, इंक्रिप्टेड है। सो सेम लाइक दैट यहाँ पर इंक्रिप्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट यूआरएल। तो यूआरएल आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रेस इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, एंड इट इंडिकेट्स दैट ओरडली तुला। Okay, so address is called a protocol identifier. It indicates that the protocol to use, and second part is called a resource. जब पहला कॉल होता है FTP, HTTP, it is called protocol rules. फाइल डाउनलोड हो रही है, साइट का फाइल आ रहा है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस फाइल ट्रांसफर, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है पहला पार्ट प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट पार्ट आपको कर रहा है रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? दैट इज मीन सेकंड वन इज कॉल्ड रिसोर्स नेम एंड इट स्पेसिफाई द IP एड्रेस। जो आप नाम लिखते हो वेबसाइट का नाम, वो कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला था URL में आप लोग लिखते हो www.google.com, अभी तो गूगल लिखा तो भी आता है, पहले ब्राउजर में मुझे पूरा लिखना पड़ता था, http:// www.google.com। आजकल गूगल करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस ऊपर दिखाई देता है, बराबर है। सो मुझे क्या बताना है कि ये डोमेन नेम तो लैंड कार्ड या आपके कोई भी डिवाइस को समझ में नहीं आता, तो वो कैसे समझ में आता होगा? तो दे नो रिक्वायर्ड IP एड्रेस, तो वो कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में, उसको इंडिकेट करते हैं कि इसका एड्रेस है IP एड्रेस, और IP एड्रेस को सर्च करना। अगर आपने डायरेक्ट IP एड्रेस भी इधर डाल दिया था तो भी वेबसाइट ओपन होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग अबाउट दैट फर्स्ट पार्ट इज अ प्रोटोकॉल एंड सेकंड पार्ट इज द what resource name, and it specifies the IP address of domain name where the resource is located. Example, the URL to below point two different files at the domain जैसे pcwebopedia.com, तो यहाँ पे the first specifies an executable file and that should be fetched using the FTP protocol, and second specifies the web page that should be fetched using HTTP protocol। मतलब दो अलग अलग दिए हुए, पहले FTP प्रोटोकॉल और फिर देखो FTP प्रोटोकॉल में staff.ext आ रहा है और दूसरा फाइल index.html HTTP प्रोटोकॉल में आ रहा है, तो इसे URL होते हैं। गॉट इट? URL मतलब क्या? यस स्टूडेंट, हेलो। From resource locator. या, वेरी गुड। नेक्स्ट, सर्च इंजन। What is search engine? Web search engine is a design to search for information on the world wide web. Okay? आपको मालूम है कि गूगल क्या है? सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है। ऐसे बहुत सारे हैं सर्च इंजन है, खोज.com, जहां पे हम लोग उस वेबसाइट से दूसरे डोमेन को लिंकिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन इज डिजाइन टू सर्च आवर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड FTP सर्वर। जितने भी FTP सर्वर होंगे, फाइल डाउनलोडिंग पार्ट, that is we can do it to the web servers. Got it? Okay, so the information may consist of web pages, images, information, other types of files. Some search engine also mine data available in a database or open directory. Okay, so web directories which are maintained only by human editor. Search engine also maintain real-time information. So search engine operate in the following order. आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है? सर्च इंजन में आप क्या क्या सर्च कर सकते हो? गूगल में क्या क्या सर्च कर सकते हो? टेक, सर्वर साइट्स,
इमेजेस, आपको अलग अलग कैटेगरी भी उधर दिए। सॉफ्टवेयर, इमेजेस, आपने कभी गूगल में गए हो, अगर मैं सर्च करता हूँ तो उधर देखो, यहाँ पे जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ, ओके, तो कैटेगरी मिलते हैं। ओके, मैंने सपोज नाउ गणेश, ओके, गणेश डाल, तो वहां पे कैटेगरी मुझे मिलते हैं, क्या सर्च करना है, ऑल, इमेजेस, शॉपिंग, न्यूज, मैप्स, मोर, मतलब यहाँ पे और भी चीजें हैं, मतलब आपको जितने चाहिए, देखो इमेजेस किया तो ओनली इमेजेस आ, तो वॉट एवर यू आर सर्चिंग इट इज डिपेंड ऑन यू कैटेगरी वाइज। लिंकिंग पेजेस उन्होंने दिए हुए हैं, मुझे बताना यह है कि आपको कैटेगरी वाइज सर्च किया जाता है, बराबर। तो इट इज ओपनिंग द डेटाबेस एंड देयर डायरेक्टरीज, उसके डेटाबेस में वो चला जाता है और उसके डायरेक्टरीज में वो दिखाता है, और डायरेक्टरीज के थ्रू आपको वो लोकेशन आते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, उसको हम लोग वेब क्रॉलिंग बोलते हैं। जो भी सर्च करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब क्रॉलिंग। सर्च करना मतलब वेब क्रॉलिंग। इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग क्यों देते हैं? कि देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग, वॉलपेपर, आर्ट, इंडेक्स किया है ना उन्होंने, इन लोगों ने बताया हुआ है कि आपको किस टाइप का आपका इमेजेस चाहिए, गोल्ड या ड्राइंग, खाली ड्राइंग चाहिए तो ओनली ड्राइंग दिखाई देता है, तो इसका मतलब उन्होंने भी कैटेगरी बना के रखे, थोड़ा इंडेक्सिंग किया हुआ है। इंडेक्सिंग सर्चिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्टरी और कीवर्ड सर्च। जैसे डायरेक्टरी और कीवर्ड सर्च। डायरेक्टरी मतलब कैटेगरी, जैसे मैंने अभी क्लिक किया वो कैटेगरी वाइज किया। दूसरा कीवर्ड सर्च, गणेश फेस्टिवल डाला सपोज, ओके, तो वो क्या हो गया? कीवर्ड। मैंने फेस्टिवल का कीवर्ड डाला इसलिए फेस्टिवल के फोटो। गॉट इट? अंडरस्टूड अबाउट दैट? तो मुझे क्या बताना है कि यहाँ पे सर्चिंग कीवर्ड सर्च होता है और उसके साथ साथ डायरेक्टरी सर्च भी होता है। तो देयर आर वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, दिस आर ऑल द सर्च इंजिन्स ऑर्डर। सर्च इंजिन का ऑर्डर है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह वो वर्ल्ड वाइड वेब पेज को लिंकिंग करके आपको सेंड करता है। इट इज द एल्गोरिथम पार्ट दे आर गिवन ओवर देयर, आपको फ्लो चार्ट में बता के कंप्लीट किया हुआ। आगे अभी हम लोग को देखना है वो है प्रोटोकॉल। ओके, सो व्हाट इज प्रोटोकॉल? मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स। ओके, रूल्स होते हैं कि WWI टीम बर्नर्स ली ने जब पहले प्रोटोकॉल लेके आए तो उन्होंने रूल्स बनाए, और रूल्स बना के क्या किया? HTTP, दैट मींस वेबसाइट ओपनिंग, फाइल डाउनलोड, FTP प्रोटोकॉल, तो ये सारे रूल्स बनाए दैट एंड द पॉइंट्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन यूज व्हेन दे कम्युनिकेट। जब भी आप टेली नेटवर्क में इंटरनेट पे जाओगे तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए इजीली होगा, और इट विल कनेक्ट दैट पर्टिकुलर pages. So it is used when they communicate. The protocol specified interaction between the communicating entities. Ja telenet, पहले बताया telenet. What is telenet? It is a network protocol used on the internet on local area. पहले हम लोग ये यूज करते थे telenet. अब टेली मार्केटिंग आपने सुना होगा, ओके, जिसमें आपको फोन आ जाते हैं, आपको मार्केटिंग करते हैं। वैसे आज टीवी पे आता है, एडवर्टाइजिंग आते हैं, 1800 वाला जो आता है वो सारे टेली नेटवर्किंग पार्ट है, आपको स्नैपडील वगैरह वगैरह। So it is local area network to provide a bi-directional interacting text-oriented communication facility using a virtual terminal connection. So Telenet was developed in 1969 and it provided access to command line interface on a remote DOS. Command line interfacing करता था, यानी DOS based, Unix based, वो command था. So term Telenet may also refer to the software that implement the client part of the protocol. Okay. So Telenet is the best understood in the context of a user with a simple terminal using the local Telenet program. That is a client program. उसका एक client program होता था, खुद लिखते थे, उसके ऊपर वो नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी करते हम लोग। जैसे पुराने जमाने में शिप्स के थ्रू हम लोग वो टेलीग्राम भेजने का काम, या आपको पता है वो थम इम्प्रेस वाला आपका वो डॉट 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 इंफॉर्मेशन आती, और फिर वो एक शिप से दूसरे शिप में वो इंफॉर्मेशन मिलती थी, वैसे उसको टेलीनेट प्रोग्राम बनाया गया। इट इज रन ऑन लोकल सेशन on a remote computer and where the user communication need are handled by the Telenet server program. फिर वो सर्वर पे चला जाता, फिर लोड करने टाइम लगता था। हमारे बहुत पुरानी चीजें ही
So it should be emphasized that the telnet server can pass on the data and it has received from the client to many other type of processes including a remote logon server. A remote logon जो लॉगिन करेगा उसको दिखाई देगा. आजकल टेलीनेट में हम लोग नया चीज क्या देखते हैं, तो टीम व्यूअर एनी डेस्क. पता है कि आपको ये टीम व्यूअर एनी डेस्क? एनी डेस्क पता है सर, एनी डेस्क पता है. या और टीम व्यूअर वो नहीं पता. यस सर, टीम व्यूअर पता है. टीम व्यूअर सर रिमोट एक्सेस देता है कोई दूसरे के कंप्यूटर का. अरे आपके आईपी एड्रेस, हाँ रिमोट एक्सेस, या सेम लाइक दैट. पुराने जमाने में शिप के थ्रू एक शिप से दूसरे शिप में जब इंफॉर्मेशन भेजनी होती ना तब वो यूज करते थे. अभी वो चीजें डायरेक्ट आपका कंप्यूटर पूरा आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया तो आईपी एड्रेस के थ्रू वो इंटरनेट के मीडिया के थ्रू आपका इंफॉर्मेशन वो उधर से बैठे बैठे आपका कंप्यूटर चला सकते हैं. आपको आपका लैपटॉप रिपेयर करना है, उधर ही बैठ के यहाँ से लैपटॉप रिपेयर करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या जो भी है, तो उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेसिंग पार्ट. तो ये सारी चीजें लॉगन सर्वर, रिमोट लॉगन सर्वर पे होती है, उसको हम लोग टेलनेट बोलते हैं. व्हाट इट नेक्स्ट? FTP. Of course, we are downloading and uploading the all documents. That is called FTP. It is a standard network protocol used to transfer file from one host to another host. हम लोग करते हैं अटैचमेंट. अब ईमेल में अटैचमेंट करना है कोई फाइल, मेरा बायोडाटा, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट, तो मुझे क्या करना है, जैसे सोशल मीडिया में आप फाइल अटैचमेंट करते हो वैसे ही सेम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. It is built on the client-server architecture and utilizes separate control and data connection between the client and server. So आपको ये डेटा कनेक्शन होने के बाद क्लाइंट और सर्वर के बीच में मैंने सेंड किया. आजकल तो व्हाट्सएप में सब पता चल जाता है आपने डेटा रिसीव किया कि नहीं किया, वो सारी चीजें पता चल जाती. तो FTP operates on the application layer on OSI मॉडल. वो भी OSI मॉडल है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसमें ओपन सिस्टम कनेक्शन मॉडल, सॉरी ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसमें 7 लेयर्स आते हैं अलग अलग. एप्लीकेशन, नेटवर्क, सेशन लेयर, ओके, मेनी नेटवर्क्स आते हैं. ओके, तो आपके अलग अलग लेयर जो है 7 लेयर में उसको नेटवर्क सिस्टम में जाना पड़ता है और उसके थ्रू आपका फाइल अपलोड. आप सोचते हो कि मैंने यहाँ से क्लिक किया वापस सेंड हो गया तुरंत हो गया, नो, 7 पार्ट्स में उसको जाना पड़ता है और उसी को OSI मॉडल बोलते हैं. ओके, जब आपका नेटवर्क इंटरनेट जो आने वाला है ना, नेटवर्क का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट नेटवर्क, तो उसके अंदर ये पूरे डिटेल्स आपको OSI मॉडल के दिए हुए हैं. सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल यूजिंग TCP/IP. In order to do this, an FTP server need to running and waiting for incoming request. So client computer is then able to communicate with the server and this connection called the control connection. जब client computer आप लोगों एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है सर्वर की थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शंस. ओके, तो वो इंटरकनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल कनेक्शन. सो इट रिमेन्स open for the during of the session with a second connection called the data connect. Secondly वो data connect, पहले control, किसने डेटा भेजा है, कौन सा डेटा है, टाइटल क्या है, वो सारे कंट्रोल. फिर डेटा कनेक्टिविटी स्टार्ट. डायरेक्टली डाउनलोड या अपलोड होता नहीं. सो इधर आइदर ओपन बाय द सर्वर और ओपन बाय द क्लाइंट टू ट्रांसफर द डेटा. पहले चलो रहा है, देखा होगा आपने, तुरंत डाउनलोड नहीं होता, पहले वो देखता है, पूरा सोर्स स्ट्रीमिंग करता है. स्ट्रीमिंग बोलते हैं ना आजकल, उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं. पूरा स्ट्रीमिंग होता है, स्ट्रीमिंग होने के बाद फिर डाउनलोड होके फिर कंटिन्यूटी डेटा करना चाहिए. आजकल सब में वाईफाई में भी स्ट्रीमिंग होता है, इनपुट में स्ट्रीमिंग होता है, आउटपुट में स्ट्रीमिंग होता है, सारी चीजें स्ट्रीम मोड में चली जाती है. हमने देखा भी होगा टीवी में पहले इंटरनेट आने को वाईफाई आने के बाद रुकता है, वो पहले डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट होने के बाद फिर प्रोसेस करना चला, उसको बोलते हैं स्ट्रीम. आजकल इंटरनेट पे भी हम लोग लाइव कुछ देखना चाहते हैं तो भी वो स्ट्रीमिंग होता है, तो दैट इज स्ट्रीमिंग मोड, और उसको हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. व्हाट इट? यस स्टूडेंट, हेलो, या. सो स्ट्रीम मोड, डेटा इज द कंटीन्यूअस स्ट्रीम, कंटीन्यूअस, मुझे कंटीन्यूअस स्ट्रीमिंग चालू है तो स्ट्रीम मोड. ब्लॉक मोड, इट ब्रेक्स द डेटा इनटू सेवरल. कभी कभी हम लोग को ब्लॉक इंटरप्ट आता है, देखो डाउनलोड करते करते बीच में कुछ करप्टेड फाइल होगी तो वो डाउनलोड होता है क्या, नहीं होता है, बीच में वो ब्लॉक मोड आ जाए. ब्लॉक मोड में भी हम लोग का वो डेटा, क्योंकि हेडर नहीं पता, इंटरप्ट हो रहा है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ब्रेक, इंटरनेट चला गया, वहां से ही आपका फाइल ट्रांसफर होना बंद हो गया,
तो आगे होता है कि फाइल डाउनलोड नहीं होता है। वो कंटिन्यू करने के लिए आपको इंटरनेट वापस कनेक्ट होगा और रेज्यूम करोगे, जैसे पॉज और ब्रेक करते हो गेम के अंदर, वैसे ही वो ब्लॉक मोड होता है। तीसरा मोड होता है कंप्रेस मोड। तीसरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है HTTP प्रोटोकॉल। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Okay, so we'll continue with your HTTP and then we'll stop. Hypertext Transfer Protocol. It is a networking protocol for distributed, collaborative, hypermedia information system. इसका मतलब आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करना होगा तो वी हैव टू कलेक्शन ऑफ द ग्लोबल वेब पेजेस, जो भी ग्लोबल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, एंड देन ओनली वी कैन व्यू द ऑन द ब्राउजर। तो उसके लिए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज HTTP। दिस फंक्शन एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ऑफकोर्स क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, कीवर्ड से कैटेगरी से रिक्वेस्ट करता है, सर्च करता है, और रिस्पॉन्स कौन करता है, सर्वर। तो दैट प्रोटोकॉल इज द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। इट इज HTTP, a web browser is used to view the website. It acts as a client which while an application running on a computer hosting and website function as a server. So client submit as a HTTP request message to the server, and server which store the content or provide resources such as HTML file. Of course, मुझे बताओ कि जब भी पहला वेब पेज ओपन होता है तो आता है index.html, that is होम पेज। हमेशा HTML हमारा पहला पेज वेब पेज का क्या होता है, HTML होता है, ताकि हम लोग को डिजाइनिंग किए हुआ पेज हम लोग को समझ में आता है, तो वो होता है HTML। और परफॉर्म अदर फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की तरह परफॉर्मेंस करता है। इट रिटर्न्स रिस्पांस मैसेज टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को रिस्पांस करता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिस्पांस किया, और सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पांस दिया, तो क्लाइंट व्यू करता है। तो रिस्पांस कंटेन्स completion status info about the request and may contain any content requested by the client in its message body. So HTTP protocol is designed to permit intermediate network element to improve or enable communication between clients and server. So this is HTTP के बारे में बताया हुआ है totally hypertext transfer protocol. Got it? मैं अभी इधर स्टॉप कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक इंटरनेट के बारे में पता चला? Yes स्टूडेंट, हेलो। यस सर। ओके, अभी खाली आगे ISP और ब्राउजर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ताकि आपका ये इंटरनेट पार्ट कंप्लीट हो। ये थ्योरी है, इसलिए मैंने कल HTML भी स्टार्ट किया, ताकि आपको बुक्स भेजा नहीं, पहले इंट्रोडक्शन नॉर्मल किया, क्योंकि आपको डायरेक्टली बोरिंग करने वाला चीज बताऊंगा तो आप पढ़ोगे भी नहीं, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट भी किया हुआ HTML। कैन प्रैक्टिस एट होम, आपको उधर प्रोग्राम भी है, आपके टैग भी सब कुछ दिए हुए, आप थोड़ा थोड़ा रीड करना चालू करो। वैसे ही मैं एक्सप्लेन करना धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी 40 मिनट्स का लेक्चर है, तो पूरा फटाफट जल्दी जल्दी नहीं होगा। जो भी ज्यादा लेक्चर दिए हैं तो उसके हिसाब से हम लोग कंप्लीट। गॉट इट? यस, हेलो। यस सर।
या सो डोंट वरी, हमारा सिलेबस आराम से कंप्लीट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, कम हुआ चलेगा लेकिन कंप्लीटली आपको समझ में आना जरूरी है। सो गिव मी अटेंडेंस। वेट, ओपनिंग द एक्सेल फाइल। आई यूज ऑलवेज ऑर्गेनाइज वे, कहाँ पे क्या चीज है तो मुझे वो ओपन करने के लिए इजी होती है। वैसे ही वेबसाइट का है, वेब पेज बनाते वक्त भी फोल्डर के अंदर प्रॉपर फाइल्स अगर मेंटेन रहेंगे तो उसको लॉन्च करने के लिए इजी होता है। आपके ही सर्वर के थ्रू आपका ही कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अटेंडेंस दे दो मुझे 1 to 10। रोल नंबर 3 सर। यस, रोल नंबर 3। रोल नंबर 4 6 Roll number 3। 8. number 9. 9 4 6 9 8 8. yeah रोल नंबर 5 3 सर। 5 3 4 5 6 8 9 आगे 11 Sir, to 17. 17 19. 16. 19 14. 16 14 17 18 19 16 18 20 21 to 30 21 23 आगे बोलो 29. 29 Any 28 28 over 28. yeah 28 29 over आगे yes fine 28. हो गया 28 बेटा 28. अरे हुआ है, दिख रहा है ना तुझे। ओके आगे सॉरी, मेरे को लगा माइक नहीं चल रहा, सॉरी। नो इशू ओवर मेरे को लगा माइक नहीं चल ओके रहा। नो प्रॉब्लम ओके थैंक यू नेक्स्ट lecture we will continue with your internet and HTML okay Bye, sir. Bye. Thank you.